Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid and in this video we are going to discuss ionic solids कि crystalline solids आगे से किस तरह से ionic solids से हम describe कर सकते हैं. Ionic solids के अलावा molecular solids हैं, we have metallic solids, we have giant covalent lattice. So lattice energy को किस तरह से incorporate किया जा सकता है ionic solids के साथ और किस तरह से वो melting और boiling point पे affect होती हैं. We will discuss the past paper questions along with each topic as well, inshallah. Let's move to the light board. So beta, we have ionic solids now. Ionic solids क्या होते हैं? Those solids which have ionic bonding in them. और ionic bonding क्या होती है? The bond that is formed due to the complete transferring of electron from one atom to another atom. For example, you have NaCl. तो बेटा NaCl में क्या होता है? अगर ionic solid की बात करें, NaCl के structure की बात करें, तो Na has one electron in the outermost shell. तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो Na will carry positive charge. That electron is carried by the chlorine atom. तो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, it will carry negative charge. So these oppositely charged ions, when combined together, it will form NaCl. तो बेटा opposite charges जब आपस में attract होते हैं, that force of attraction is called as electrostatic force of attraction in between the oppositely charged ions. So बेटा इस तरह से ionic compounds बनते हैं, ionic solids बनते हैं. और properties की तरफ अगर हम move करें, तो first point it is mentioned, it has three-dimensional arrangement of the ions. बेटा अगर three-dimensional arrangement की बात करें, it means it has three dimensions, x-axis, y-axis and z-axis. तो let's draw the three-dimensional ionic compound. NaCl की एग्जाम्पल अगर हम ले रहे थे तो we can draw NaCl over here. ब्लू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ब्लू डॉट्स को Na पॉजिटिव से. बेटा मस्ट रिमेंबर कि जो सोडियम आयन है ना, इसके जितने भी ये पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, दे आर कनेक्टेड विद द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस. सो यू हैव दिस पॉइंट. सो यहां पे क्या होएगा? क्लोराइड आयन. दिस इज कनेक्टेड विद दिस पॉइंट, सो इट मस्ट बी क्लोराइड आयन. दिस मस्ट बी क्लोराइड आयन. सो बेटा ये जो ग्रीन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है दैट इज क्लोराइड आयन, और जो ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है दैट इज सोडियम आयन. सो नाउ यू हैव टू टेल मी यहां पे कौन सा आयन आएगा? ओवर हियर ऑन दिस साइड इट मस्ट बी सोडियम आयन. दिस इज क्लोराइड आयन, तो ये क्या होएगा? दैट इज सोडियम आयन. If this is chloride ion, so that is sodium ion. If this is sodium ion, तो ये क्या होएगा? That is chloride ion. तो बेटा oppositely charged ions are attracting towards each other. तो ये आपके पास होता है एक three-dimensional arrangement of the ions. I have tried to mention the three-dimensional arrangement of the ions of Na positive and Cl negative in the NaCl crystal. NaCl ionic compound में किस तरह से ये arrange होते हैं. So I tried to mention this over here. Point number 2. They have high melting and boiling point. बेटा melting point और boiling point ionic compounds की high होती है. They have high melting and boiling point because they have strong electrostatic force of attraction in between the oppositely charged ions. जो ऑपोजिट आयंस होते हैं उनके दरमियान में अट्रैक्शन ज्यादा है. अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉन्डिंग स्ट्रांग है. इट मींस सिंपली आई एम सेइंग कि आयनिक बॉन्डिंग इज अ स्ट्रांग बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रांग बॉन्ड, दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. सो NaCl का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेल्सियस. मैग्नीशियम ऑक्साइड का है 2852 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द डिफरेंस? क्या चीज है जो इनके मेल्टिंग पॉइंट को चेंज कर रही है? बेटा NaCl में वी हैव सोडियम. सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है? 1. क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है? इट इज एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन.
सो देयर इज अ चार्ज +1 एंड -1, ठीक है। जितना चार्ज बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखें, यू हैव Mg2 पॉजिटिव एंड यू हैव O2 नेगेटिव। तो बेटा जब चार्जेस ज्यादा हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। नाउ ऑब्जर्व कि NaCl में Na ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। मैग्नीशियम इज डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑक्सीजन को रिक्वायर्ड थे। Oxygen has 6 electrons in the outermost shell, so it needs 2 electrons. After getting 2 electrons, oxygen is carrying 2 negative charge and it becomes an oxide. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया 2 इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से और 2 इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्ट होने की वजह से। सो इस वजह से बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई। तो यानी कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग होएगी उतनी ही ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाएगी। गॉट इट? पॉइंट नंबर 3, आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स of electricity in molten state or in aqueous state, but they are non-conductors in solid state. बेटा ionic compounds solids हैं, solids are tightly packed. आयंस मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, उनके दरमियान में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो देयर इज नो स्पेस जहां पे फ्री आयंस मूव कर सकें। फ्री आयंस होते ही नहीं है तो मूवमेंट कहां से होएगी? ऑलराइट, सॉलिड स्टेट में जब हम आयोनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, देयर आर नो फ्री आयंस। व्हेन देयर आर नो फ्री आयंस इट मींस दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बेटा कंडक्टिविटी के 2 ही चार्जेस हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन या तो आयंस। आयोनिक कंपाउंड्स में वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द आयंस। अगर फ्री आयंस हैं तो वो कंडक्टर है, अगर फ्री आयंस नहीं है सो दे आर नॉन कंडक्टर्स। मॉल्टन स्टेट में और एक्वियस स्टेट में ऐसा क्या होता है? बेटा एक्वियस स्टेट का मतलब होता है लिक्विड स्टेट। इलेक्ट्रोलिसिस में बहुत मर्तबा से आपने इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया होगा कि जैसे ही वाटर में आपने ऐड किया, इन दिस वे यू विल गेट Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप वाटर में ऐड करते हो तो आपके पास जो फ्री आयंस होंगे वो कौन कौन से होंगे? मैग्नीशियम आयन, ऑक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। एक्वियस स्टेट में फ्री आयंस आ जाते हैं व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोलिसिस में हम एक्वियस या मोल्टन आयोनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं। और मोल्टन स्टेट क्या होती है? लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में भी बेटा फ्री आयंस मौजूद होते हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। दिस इज द लिक्विड स्टेट, दिस इज द मोल्टन स्टेट, ठीक है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड मोल्टन स्टेट में है तो वी कैन से Mg2 पॉजिटिव मौजूद है और O2 नेगेटिव मौजूद है हमारे पास लिक्विड स्टेट में। सो वी हैव फ्री आयंस इन लिक्विड स्टेट और इन एक्वियस स्टेट, दैट्स व्हाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस वे। और कंडक्टर्स नहीं होते सॉलिड स्टेट में बिकॉज दे आर टाइटली पैक्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। सो देयर इज नो फ्री आयंस, तो कंडक्टर्स नहीं हो पाते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटल इन नेचर। Ionic compounds are brittle in nature. I'll come back to this point. लेकिन उससे पहले brittle in nature को डिस्कस करते हैं। Brittle in nature, बेटा ionic compounds brittle क्यों कहा गया? We have oppositely charged ions, that is positive, negative, positive or negative. It is negative, positive, negative, positive. Oppositely charged ions are combined together to form an ionic compound. यही होता है। Like this, we have ionic compound जिसमें layers होती हैं, opposite charges की layers होती हैं, positive and negative
और पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इनके दरमियान में अट्रैक्शन है और एक आपके पास क्रिस्टल बना हुआ है. व्हेन वी विल अप्लाई फोर्स ओवर इट, जैसे ही आप यहां पे फोर्स अप्लाई करते हो तो ये लेयर थोड़ी आगे मूव कर जाएगी. सो इट विल कम इन फ्रंट ऑफ द पॉजिटिव आयन. तो जैसे ही फोर्स अप्लाई की, नाउ दिस पॉजिटिव कम्स एट दिस पॉइंट. यहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव. यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. यहां पे क्या आ गया? नेगेटिव. यहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव. दिस पॉजिटिव विल कम एट दिस पॉइंट, यानी कि स्लाइड करके आगे. नाउ यू कैन सी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं. व्हेन वी हैव सेम आयंस इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दे विल रिपेल. ठीक है, रिपल्शन कॉजेज द ब्रिटलनेस. ठीक है, सो ड्यू टू दिस repulsion, ionic compounds are brittle in nature. Due to the repulsion, ionic compounds brittle हो जाएंगे. और ये repulsion कब होएगी? When we will apply force. Got it? Last point, mostly soluble in water. Ionic solids are mostly soluble in water. Why I have mentioned this point mostly? General statement बेटा ली जाती है कि ionic compounds are soluble in water, but I have mentioned mostly soluble in water because there are some insoluble salts as well. बेटा ionic compounds में आपके पास salts आ जाते हैं. Salts दो तरह के हैं. Soluble salts होते हैं mostly, and there are some insoluble salts जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल यू हैव कार्बोनेट्स. जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं दे आर इनसोल्यूबल. जनरल स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप कार्बोनेट्स या अमोनियम कार्बोनेट. सल्फेट्स में वी हैव लेड सल्फेट, वी हैव बेरियम सल्फेट. These are insoluble salts. We can say calcium carbonate, magnesium carbonate. These are insoluble. You have AgCl, silver chloride. You have silver iodide. You have silver bromide. या lead iodide, lead chloride. These are insoluble salts. अब calcium carbonate तो ionic compound है, but it is insoluble in water. So that's why I have mentioned this point कि they are mostly soluble. Most of the ionic compounds are soluble in the water, not all the ionic compounds. All right. So soluble salts में you can say all nitrates are soluble. जितने भी nitrates हैं, all nitrates are soluble. Group 1 के जितने भी compounds होते हैं, they all are soluble. Group 1 compounds are soluble. G1 positive यानी कि ग्रुप 1 के आइंस को मेंशन करने की यहां पे मैंने ट्राई किया. ग्रुप 1 कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर. या अमोनियम के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर. सल्फेट्स तमाम बहुत सारे सोल्यूबल होते हैं अपार्ट फ्रॉम फ्यू सल्फेट्स, जैसा कि बेरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है. इनके अलावा बहुत सारे मोस्टली जो सल्फेट्स होते हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर. Although we'll discuss the solubility trend of sulfates, carbonates, nitrates, hydroxides के solubility increase कब करती है, decrease कब करती है, groups में variation क्या होएगी, these all things we'll cover in the next videos inshallah. But for the time being, you just have to clear this concept कि बेटा तमाम ionic compounds water में soluble नहीं होते, mostly soluble होते हैं. ठीक है, soluble in water. Now moving towards this MCQ, which compound has greater melting point? बेटा we observe this concept कि NaCl में
देयर इज वन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड इन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, तो इसका तो कम होएगा। सीजियम क्लोराइड, सीजियम बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 1, सीजियम भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्लोरीन इज गेटिंग दैट इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन, सीजियम क्लोराइड बन गया। बट वी हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड is formed when magnesium is transferring 2 electrons, oxygen is carrying 2 electrons, तो magnesium oxide बना है, इस पे +2 और -2 चार्ज है। But we have barium oxide as well, बेरियम ऑक्साइड में भी 2 पॉजिटिव है और O2 नेगेटिव है, तो इन दोनों में से किसी एक को हमें कंसीडर करना होगा। सो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जस्ट इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग से हम देखें तो यहां पे इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट हो गया। सो वी हैव टू रिलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी नाउ, ठीक है। लैटिस एनर्जी, व्हाट इज लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी जब ज्यादा होती है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन लैटिस एनर्जी के लिए एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप आई एम जस्ट डिस्कसिंग, क्वालिटेटिव है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं है ये। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q पॉजिटिव, Q नेगेटिव ओवर R पॉजिटिव एंड R नेगेटिव, यानी कि चार्ज टू साइज रेशियो, चार्ज ओवर रेडियस, ठीक है। दीज आर द चार्जेस ऑफ द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, बेरियम एंड ऑक्साइड, यहां पे आपने चार्जेस देखने हैं। दोनों को किस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? एक तरफ लिख लें आप मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑन वन साइड यू हैव बेरियम ऑक्साइड। बेटा मैग्नीशियम का चार्ज क्या है? दैट इज 2 पॉजिटिव, इट हैज 2 नेगेटिव। बेरियम का चार्ज 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। ऑक्साइड इधर भी है, ऑक्साइड इधर भी है, दोनों तरफ साइज सेम है, कैंसिल कर दीजिए। दोनों तरफ सेम है, कैंसिल कर दीजिए। दोनों तरफ +2 भी है, कैंसिल कर दीजिए। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विथ मैग्नीशियम एंड बेरियम। बेटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। मैग्नीशियम टॉप पे है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। तो बेरियम is at the lower side in the group 2, it has more number of shells, so it means इसका साइज ज्यादा है, इसका रेडियस ज्यादा है। यहां पे मैं जस्ट लिख रहा हूं बेरियम इज बिगर इन साइज, इट हैज बिगर रेडियस, ये बेरियम का लिखा है, ठीक है। लेकिन जो मैग्नीशियम है इट इज स्मॉलर इन साइज। मैग्नीशियम आयन जो होगा दैट इज स्मॉलर। तो बेटा लैटिस एनर्जी के साथ रिलेशनशिप ऑब्जर्व कीजिए, अगर रेडियस जिसका ज्यादा है उसकी लैटिस एनर्जी कम होएगी, जिसका रेडियस स्मॉल है उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होएगी। सो स्मॉल किसका है बेटा? दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो वी विल कंसीडर कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा है, हाई लैटिस एनर्जी, सो दैट्स व्हाई इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। All right. Now I am asking another question and this is what you have to tell me in the comment box. I am just mentioning 2 pairs over here और उन 2 pairs में से आपने बताना है किसका boiling point ज्यादा है। You have NaF and you have NaCl। NaCl और NaF में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होएगा या किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है? दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर अस इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज one question for you. There is another question. NaF और NaCl में से बताना है आपने किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। एंड सेकेंड वन इज you have barium oxide and you have
sodium oxide. Out of these two, which one has greater lattice energy and greater melting point? This is bit complicated क्योंकि यहां पे you can observe +1 चार्ज है, यहां पे +2 चार्ज है. साइजेस में से इसका स्मॉल है और इसका साइज ज्यादा है. साइज को अगर आप देखते हो तो बेरियम ऑक्साइड कम होना चाहिए इसका लैटिस एनर्जी. अगर सोडियम ऑक्साइड को साइज के रेफरेंस में हम ऑब्जर्व करते हैं तो इट मस्ट हैव ग्रेटर लैटिस एनर्जी. अब अगर चार्जेस पे देखते हो तो बेरियम हैज +2 चार्ज. तो चार्ज इज सेइंग कि बेरियम ऑक्साइड मस्ट हैव ग्रेटर लैटिस एनर्जी. लेकिन अगर मैं सोडियम ऑक्साइड को देखूं, सोडियम ऑक्साइड -1 चार्ज +1 चार्ज है सोडियम पे, तो इट इज सेइंग कि लैटिस एनर्जी इसकी कम है. तो इट मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए. तो बेटा जब इस तरह की कंट्राडिक्शन आ जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है. तो मस्ट रिमेंबर द की कॉन्सेप्ट, ऑलवेज फ्लो विद द चार्ज. अगर कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ जाए एंड इन दिस केस यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट जो कि चार्ज को फॉलो करेगा. ठीक है, यू जस्ट हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज. ठीक है, चार्ज को देखें, रेडियस को फिर स्किप कर देना है जब आपके पास कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ जाएगी. So hope so you can attempt the questions of lattice energy now, and you can relate that lattice energy with the melting point as we have discussed the points of melting point and boiling point over here. So now moving towards the last thing, structure and geometry of the ionic compounds. बेटा structure of ionic compound depend करता है radius ratio पे and coordination number पे. I have mentioned two compounds over here, NaCl और cesium chloride. बहुत ज्यादा ये कॉमन क्वेश्चन है आयनिक कंपाउंड्स में से, cesium chloride और NaCl. इनके स्ट्रक्चर्स पे डिस्कशन बहुत ज्यादा होती है और पास पेपर्स में यही क्वेश्चंस इन्हीं से ड्राइव किए जाते हैं. NaCl का अगर हम रेडियस रेशियो ऑब्जर्व करें, इट इज मेंशन्ड ओवर हियर 0.53 और सीजियम क्लोराइड की रेडियस रेशियो क्या है, दैट इज 0.93. तो बेटा जब रेडियस रेशियो डिफरेंट होती है तो दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दे हैव डिफरेंट ज्योमेट्री. तो वी कैन राइट डाउन दिस पॉइंट कि सेम रेडियस रेशियो सेम ज्योमेट्री अगर है, so they will have same radius ratio and they will have same coordination number. C.O लिखा है जस्ट मैंने, coordination number. ठीक है, CO नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होएगा. सो NaCl का 0.53 है, सीजियम क्लोराइड इज 0.93. कुछ यहां पे कॉन्सेप्ट याद रखें कि NaCl का जो स्ट्रक्चर है इट इज फेस सेंटर्ड, it has फेस सेंटर्ड क्यूब, और जो सीजियम क्लोराइड है इट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब. बेटा जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब होते हैं वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8:8. जो फेस सेंटर्ड क्यूब होते हैं वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा 6:6. यानी कि जो पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है उन दोनों की रेशियो 6:6 यूज होएगी. और अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूब है तो इट मींस
8:8 है. What is coordination number? Coordination number means कि one anion is surrounded by how many numbers of the positive ions. अगर मैं 8:8 की बात कर रहा हूं, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब. its coordination number is 8:8. It means one cesium ion is surrounded by 8 chloride ions and one chloride ion is surrounded by 8 cesium ions. In the same manner, जो face centered cube है, that is 6:6. It means one sodium ion is surrounded by 6 chloride ions and one chloride ion is surrounded by 6 sodium ions. So in the same manner, बेटा MDCAT का क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में, the coordination number of sodium in NaCl crystal is. NaCl coordination number क्या है? That is 6:6. It means 6 chloride ions are surrounded by one sodium ion, or one sodium ion is surrounded by 6 chloride ions. तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का भी 6 है और क्लोराइड का भी 6 है. इन सीजियम क्लोराइड, सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 8. क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? दैट इज आल्सो 8. ऑलराइट, सो कोऑर्डिनेशन नंबर से रेलेवेंट किस तरह से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, वी डिस्कस दिस थिंग. और ये की पॉइंट याद रखिएगा NaCl के लिए और सीजियम क्लोराइड के लिए. अलोंग विद दिस थिंग मस्ट रिमेंबर few more concepts जो पूछे जा सकते हैं आपसे. बेटा NaCl has structure similar to. बेटा ये बिल्कुल एक सिंपल स्टेटमेंट भी एफएससी की बुक्स में यूज की गई है और MDCAT में ये कॉन्सेप्ट असेस किया जा चुका हुआ है. ए लेवल्स में we always discuss the relationship in between NaCl, cesium chloride and cesium fluoride. कि जो सीजियम फ्लोराइड है दैट हैज द सेम स्ट्रक्चर. ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है NaCl के साथ सेम स्ट्रक्चर रखता है. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है. सो इट मींस इट हैज सेम ज्योमेट्री, इट हैज सेम स्ट्रक्चर. सीजियम फ्लोराइड हैज आल्सो फेस सेंटर्ड क्यूब. इट मींस इसकी भी रेशियो 6:6 है कोऑर्डिनेशन नंबर्स की. सीजियम क्लोराइड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पॉइंट ओवर हियर, इट इज 8:8. तो बेटा इट हैज डिफरेंट ज्योमेट्री जो NaCl से रिलेट नहीं करती. NaCl में वी हैव 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर. सो वी विल सेलेक्ट द ऑप्शन डी क्योंकि फर्स्ट दोनों ऑप्शंस का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है और रेडियस रेशियो भी इनकी सिमिलर है. नॉट एग्जैक्ट 0.53, बट ये 0.53 जो रेडियस रेशियो हमने निकाली हुई है दैट इज रेडियस ऑफ केटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन. ठीक है, दैट्स टोटली अप टू यू किस तरह से आप इसकी रेशियो निकालते हो. यू कैन ऑल्सो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनाइन ओवर केटाइन और केटाइन ओवर एनाइन, दैट्स टोटली योर चॉइस. रेडियस रेशियो अगर नियरेस्ट भी है तो बेटा सेम स्ट्रक्चर में उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है. जैसा कि अगर आपके पास है जी 0.22 से 0.41 तक इस रेंज में कोई कंपाउंड की रेडियस रेशियो आती है, सो इट मींस कि बेटा दैट इज टेट्राहीड्रल. ओके, और अगर 0.41 से ज्यादा होती है और वो 0.73 तक होती है तो दैट इज समवट ऑक्टाहीड्रल. ठीक है, और अगर 0.73 से ज्यादा होती है तो दैट इज परफेक्ट क्यूब. ठीक है, जिस तरह के सीजियम क्लोराइड है दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब. तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब कब होएगा? जब 0.73 से ज्यादा रेडियस रेशियो निकलेगी. केटाइन ओवर एनाइन की रेडियस रेशियो व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0.73 तो दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब.
अगर 0.73 से कम है और 0.41 से ज्यादा है, दैट इज ऑक्टाहीड्रल या फेस सेंटर्ड क्यूब, ठीक है। और अगर 0.41 से भी कम है बट इट इज ग्रेटर देन 0.22, तो दैट इज टेट्राहीड्रल इन शेप। कम से कम ये तीन वैल्यूज को याद रखिएगा, जो रेंजेस आपको बताई हैं कि कब टेट्राहीड्रल होएगा, कब बॉडी सेंटर्ड क्यूब होएगा और कब ऑक्टाहीड्रल होएगा। सो इंशाल्लाह यू कैन इजीली अटेम्प्ट योर पास्ट पेपर क्वेश्चंस by using these values. It will help you out in that. So hopefully we discussed जितने भी points वो आपको clear हो गए होंगे, और if you have any further query regarding any concept from the ionic solids या lattice energy से relevant जो भी question आता है, you can mention your question in the comment box, और इस question का लाजमी आंसर आपने comment box में हमें mention करना है, ठीक है, this and this. Let's start with the simple molecular lattice. बेटा simple molecular lattice में, simple molecular solids में we will discuss those molecules which are polar or which are non-polar. यानी कि polar molecules को भी discuss कर सकते हैं and non-polar molecules को भी discuss कर सकते हैं, and these are having van der Waals forces. Not only the van der Waals forces, but along with that we can also discuss those molecules जो कि polar है। बेटा polar में कौन कौन सी बॉन्डिंग आ सकती है? H2O की एग्जांपल अगर डिस्कस करें, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है, H2O is having hydrogen bonding, तो यानी कि we can discuss those molecules which have hydrogen bonding। हम उन मॉलिक्यूल्स को भी डिस्कस कर सकते हैं जो पोलर तो हैं बट दे डोंट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे हैव डाइपोल फोर्सेस, डी फोर्सेस, और द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो कि वैन डर वाल्स फोर्सेस में हम कहते हैं लंडन फोर्सेस। सो वो तमाम मॉलिक्यूल जिनमें लंडन फोर्सेस हैं वो भी तमाम सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस कहलाते हैं। तो बेटा यहां पे हम सॉलिड्स को डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज यहां पे कुछ पॉइंट्स को याद रखिएगा कि अगर आपको कहा जाता है H2O, it means we are not talking about water molecule, we are talking about ice, ठीक है। This H2O is ice, that is simple molecule. Carbon dioxide, this is not the gaseous carbon dioxide, remember this point, this is dry ice. Solid carbon dioxide को हम क्या कहते हैं? Dry ice कहते हैं। तो बेटा dry ice is carbon dioxide, that is a solid, it is also a molecular solid, ठीक है। तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है? H2O में कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है? CH4, you have I2, you have P4, you have S8। तो बेटा ये तमाम मॉलिक्यूल्स जो कि सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस कहलाते हैं, सॉलिड स्टेट में यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर मोस्टली वोलेटाइल इन नेचर। सो अगर आयोडीन की प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करें तो वी कैन ऑल्सो रिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल विद द सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस। तो एक पॉइंट बेटा, आयोडीन इज स्पेसिफिकली इट इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक मॉलिक्यूल। आयोडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूब होता है। इट हैज वैन डर वाल्स फोर्सेस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हम वैन डर वाल फोर्सेस को भी डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी डिस्कस करते हैं। वो तमाम मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दे आर मॉलिक्यूलर लैटिस, और जिनमें डायपोल फोर्सेस भी होंगी वो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो सकते हैं। सो दे आर नॉन कंडक्टर। आयोडीन अगर नॉन कंडक्टर है, इट मींस जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे जो लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, देयर इज नो फ्री लैटिस, वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते होंगे, ना ही फ्री आयंस हैं, बिकॉज दे आर नॉट आयोनिक सॉलिड्स। नॉन कंडक्टर क्यों है? बिकॉज दे डोंट हैव फ्री आयंस।
और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयोन्स। गॉट इट? वैंडरवॉल फोर्सेस अगर इनमें मौजूद है आयोडीन में, तो बेटा टेल मी, वैंडरवॉल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? वीक होती हैं। जनरली वी कैन से कि अगर वीक वैंडरवॉल फोर्सेस हैं आयोडीन में, तो इट मींस इट हैज लो melting and boiling point. Got it? So we can relate the van der Waals forces with the boiling point of iodine as well. We have already discussed कि ये जितने भी molecules हैं they are volatile in nature. तो can I write this point कि iodine is a sublime substance, volatile है, सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करता है। सबलाइम सब्सटेंस कौन से होते हैं बेटा? सबलाइम सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस which can convert from the solid state to the gaseous state without passing through the liquid state. डायरेक्ट जो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे आर सबलाइम इन नेचर। और जनरल स्टेटमेंट अगर हम दें मॉलिक्यूलर लैटिस की, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोडीन, व्हाट डू यू थिंक कि आयोडीन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है? उसकी रीजन क्या है? वैन डर वाल्स फोर्सेस, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूलर लैटिस में वैन डर वाल्स फोर्सेस भी एग्जिस्ट कर रही हैं, इस वजह से दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोडीन भी दो फॉर्मेशंस में एग्जिस्ट करता है, दो फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, आयोडीन सॉलिड और आयोडीन गैसियस। बेटा अगर आयोडीन सॉलिड की बात की जाए तो इट इज ब्लैक सॉलिड, whereas iodine, if we have gaseous iodine, अगर ये gaseous state में exist करती है, it has dark purple vapors or you can say violet vapors. So these are the points for simple molecular lattice. Iodine के भी points आपने याद रखने हैं. Now moving towards the metallic lattice. बेटा metals में metallic bonding होती है. As we discussed कि molecular solids में polar और non-polar molecules होते हैं, और you can also say कि इनमें covalent bonding भी exist करती है. Metallic lattice में we have metallic bonding. और मेटालिक बॉन्डिंग किनके दरमियान में होती है? मेटल के एटम्स जब अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, दे कन्वर्ट इनटू द मेटल केटाइंस। सो मेटल केटाइंस और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स के दरमियान में, सो दे हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस इन बिटवीन देम। सो ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप इन बिटवीन द ऑपोजिटली charged cations and free electrons और delocalized electrons, इनके दरमियान में जो attractive forces develop हो रही हैं, that is called metallic bonding. ठीक है, that is called metallic bonding, और वो बनाती है मुकम्मल metallic lattice. बेटा what do you think कि इनका melting और boiling point क्या होता होगा? They have high melting point and boiling point. Reason? Due to the electrostatic force of attraction. बेटा जब attractive forces dominant होती हैं, bonding strengthen हो जाती है, bonding जब strengthen होती है तो melting और boiling point भी high हो जाते हैं. So metallic bonding is stronger. That's why they have high melting and boiling points. If we talk about conductivity, and we all know कि metals are good conductors of heat and electricity, heat के भी और electricity के भी. Reason क्या होती है? Because they have free electrons. Free ions ionic solids में होते हैं, जब वो liquid state में होंगे या aqueous state में होंगे.
फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वो सॉलिड्स की हम बात करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी की वजह से मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Metals are good conductors of heat and electricity due to the free electrons, due to the delocalized electrons. So after that we have the nature of the metals. Metals are sonorous, they have ductile in nature, they are malleable, they have shiny surface. जैसे ही metals को cut किया जाता है तो they have metallic luster. तो these are few points. They have metallic luster, they are ductile in nature, they are malleable in nature. What is ductile in nature and what is malleable in nature? What is having a lustrous surface? बेटा जब मेटल्स को कट किया जाता है तो उनके एटम्स लाइट में एक्सपोज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ मेटल सरफेस, ये आपके पास एक मेटल थी, यू कट दैट मेटल फ्रॉम दिस साइड. तो बेटा ये जो कटिंग सरफेस है इसकी, नाउ इट इज द एटम्स आर डायरेक्टली एक्सपोज्ड इनटू द लाइट. Light can fall directly on these packets. तो बेटा जैसे ही लाइट इन एटम्स पे फॉल करती है, लाइट कंटेन्स फोटॉन्स, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स. वो एनर्जी ट्रांसफर होती है एटम्स को एंड एटम्स बिकम एक्साइटेड. और जब एक्साइटेड होते हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं एंड आफ्टर रिलीजिंग द एनर्जी दे विल कम बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट. जब एनर्जी वो रिलीज करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है और वो हमें शाइनी सरफेस, लस्ट्रस सरफेस की तरह से नजर आती है. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस थिंग. डक्टाइल इन नेचर, बेटा डक्टाइल मींस कि मेटल्स कैन मोल्ड इनटू द वायर्स, और जो मैलिएबल होता है कैन बी ड्रॉन इनटू द डिफरेंट शीट्स. उनकी शेप को चेंज किया जा सकता है मेटल्स को. सो नाउ वी हैव टू एग्जांपल्स ऑफ द मेटल्स. वी हैव कॉपर एंड वी हैव सोडियम. बेटा कॉपर में कॉपर एटम्स के दरमियान में कोऑर्डिनेशन होती है, दैट इज कॉल्ड 12 कोऑर्डिनेटेड मेटल. कॉपर इज कॉल्ड 12 कोऑर्डिनेटेड मेटल. व्हाट डज इट मीन? कि एक मेटल इज सराउंडेड बाय 12 अदर कॉपर एटम्स. In sodium, as we have mentioned here, it is 8 coordinated metal. It means one sodium metal is surrounded by 8 other sodium atoms. ठीक है, यहां पे हम atoms की बात कर रहे हैं. Copper atom is surrounded by 12 other copper atoms. One sodium atom is surrounded by 8 other sodium atoms. सो बेटा इसलिए इसको 8 कोऑर्डिनेटेड और इसको 12 कोऑर्डिनेटेड मेटल कहा जाता है. आउट ऑफ दीज टू विच वन हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट? बेटा कॉपर. कॉपर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, हाई बॉइलिंग पॉइंट. और जो सोडियम है दैट इज सॉफ्ट मेटल, इट हैज low melting and boiling point. Sodium is a soft metal, whereas जो copper है, copper is hard. You can cut the sodium metal with knife. और बहुत ज्यादा reactive होती है, very reactive. It is very reactive. Whereas जो copper metal है that is lower in the reactivity series, it is not as reactive as sodium.
और इसको कंसीडर किया जाता है लेस रिएक्टिव मेटल्स में। सोडियम मेटल के बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती हैं, बहुत विग्रस रिएक्शंस होती हैं। कॉपर बहुत सारे रिएक्शन शो ही नहीं करती। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड में इफ यू विल पुट सोडियम मेटल, बहुत तेज रिएक्शन होएगा, द रिएक्शन इज वेरी विग्रस। सोडियम फॉरन से डिस्प्लेस कर देती है हाइड्रोजन को फ्रॉम एन एसिड, बट व्हेन यू विल पुट कॉपर मेटल into the sulfuric acid, copper cannot displace hydrogen from sulfuric acid. Reason क्या है? Because it is lower in the reactivity series, less reactive होता है, so it cannot displace hydrogen from sulfuric acid. Got it? So बेटा this is the concept behind metallic lattice. और अगर आपसे कंडक्टिविटी की पूछी जाती है, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। Delocalized electrons is directly proportional to conductivity. So let me ask one question now. Which is good conductor? Na positive, sodium metal, magnesium metal या aluminium metal? So what is your answer? तो बेटा we'll move with aluminium because aluminium has more free electrons. जितने ज्यादा free electrons होंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी conductivity होएगी, उतने ही ज्यादा वो अच्छा conductor होएगा. So that is the concept behind the conductivity. So that is for the metallic lattice. Now we have to move towards the giant covalent lattice. बेटा giant covalent lattice होते ये covalent compounds ही हैं, simple covalent compounds और ये हैं giant covalent compounds. For example अगर आपसे कहा जाता है HCl molecule, HCl is simple covalent compound. I2 is simple covalent compound that is non-polar as well. और अगर आपसे कहा जाता है H2O that is covalent compound, लेकिन वो simple covalent compound है. But when we are talking about giant covalent compounds या giant covalent solids या giant covalent lattice, it means we are talking about macromolecules, जिसमें atoms की भी discussion की जा रही है और silicon dioxide that is the empirical formula of sand, SiO2, silicon dioxide, diamond and graphite. These three examples are more prominent in this topic, giant covalent lattice. होते क्या हैं? The first point which we have already discussed कि ये होती है macromolecules. जिनमें होता है बेटा large network of covalent bonds. They have large network of covalent bonds. बेटा इनमें बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, लार्ज नेटवर्क होता है, इसी वजह से दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जब एक कंपाउंड मैक्रोमोलिक्यूल है, इट हैज मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स इन इट, ऑल्दो कोवेलेंट बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड इटसेल्फ. आयोनिक और मेटालिक की निस्बत कोवेलेंट बॉन्डिंग is considered as weak covalent bonding. लेकिन जब large network of covalent bonds की हम discussion करते हैं तो melting और boiling point उनका high हो जाता है, very high melting point and boiling point. और giant covalent lattice general statement अगर दी जाए तो they are bad conductors except graphite. We'll discuss this point. And they are insoluble in water. Insoluble भी होते हैं and they are non-conductors except graphite.
एक्सेप्ट ग्रेफाइट। सो बेटा यहां पे हमने डायमंड और ग्रेफाइट को मेंशन किया। बोथ आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। देयर इज अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को डिस्कस किया हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं, तो यू कैन मेंशन द थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एज वेल। नीचे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपने मेंशन करना है। थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सी है? सो लेट्स डिस्कस डायमंड एंड ग्रेफाइट। बेटा जो डायमंड है, डायमंड को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड, जाइंट कोवेलेंट कंपाउंड डिस्कस किया जाता है। इट हैज sp3 hybridization. What does it mean? sp3 hybridization होती है डायमंड के स्ट्रक्चर में। इट मीन्स वन डायमंड जो कि कार्बन है, इन द डायमंड वन कार्बन इज bonded with 4 other carbon atoms. One carbon is bonded with 4 other carbon atoms. तो बेटा कार्बन तो टोटल ही 4 बॉन्ड्स बना सकता है। इट मीन्स all the electrons of carbon atom are used in the bond formation. There is no free electron. It has no free electron. बेटा अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, it means that is insulator. Whereas in the structure of graphite, it is having sp2 hybridization. It has sp2 hybridization. बेटा sp2 का मतलब है कि वन कार्बन, क्योंकि ये है तो कार्बन एटम्स ही, वन कार्बन इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स. वन कार्बन is attached with 3 carbon atoms. कार्बन के टोटल होते हैं बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स. 3 electrons are used in the bond formation. It means 1 out of 4 electrons is free to move. 1 electron is free to move. बेटा अगर free है तो it means it can conduct electricity. So that is the reason कि graphite is considered as a conductor. और इसके लिए एक पॉइंट याद रखना है, एनाइसोट्रॉपी का कॉन्सेप्ट ग्रेफाइट पे अप्लाई किया जाता है. व्हेन ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज इन द पैरेलल लेयर्स देन इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन जैसे ही ये परपेंडिकुलर लेयर्स में आ जाता है, सो इट बिकम्स एन इंसुलेटर. इट मींस कि अगर डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, पार्टिकल्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है. दैट इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी. We have already discussed this anisotropy in the previous video. आप वहां पे इसको डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो. ओके जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है. ग्रेफाइट का अगर जनरल स्ट्रक्चर पूछा जाए, इट हैज 2 dimensional layered structure, 2D layered hexagonal structure. Whereas अगर डायमंड की बात करते हो, it is 3 dimensional tetrahedral closed structure. Got it? और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज are similar to the diamond.
ये भी टेट्राहीड्रल इन शेप होता है. One silicon is making 4 bonds. There is no free electron. All the electrons of silicon are used in the bond formation. So it is also an insulator. It cannot conduct electricity. Tetrahedral in shape होता है. One silicon is bonded with 4 oxygen, just like one carbon is bonded with the 4 carbon in the structure of diamond. तो silicon dioxide में भी एक silicon 4 oxygen के साथ attach होता है. जिस तरह से डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल है. डायमंड अगर इंसुलेटर है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी इंसुलेटर है. इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट. सो with this we have completed this topic: simple molecular lattice, metallic lattice, giant covalent lattice. तो सॉलिड का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू. सो स्टूडेंट्स, वी कवर्ड आयनिक बॉन्डिंग, वी कवर्ड द स्ट्रक्चर्स ऑफ NaCl, सीजियम क्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को. हमने उनके रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर्स के कॉन्सेप्ट को कवर अप किया. वी ऑल्सो डिस्कस द पास्ट पेपर क्वेश्चन जो कि अपीयर हो चुका हुआ एग्जाम्स में, along with the molecular solids, metallic solids, and the last one जो हमने डिस्कस किया giant covalent lattice को, कि किस तरह से डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज होती हैं, कब ये कंडक्टर्स होंगी, इन विच स्टेट दे कैन डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कब ये इंसुलेटर्स होंगे कंपाउंड्स, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेटालिक सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. So we covered all these things. So if you have any query regarding this topic, so do let us know in the comment box. We'll inshallah give you the feedback over your questions. Thank you very much.